दोस्तों, अयोध्या धाम में आए कुछ और भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, कुछ लोग तमिलनाडु से आए हैं, कुछ लोग मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं, यहाँ पर कैसा लग रहा है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, खान पान की व्यवस्थाएं कैसी हैं, सभी कुछ हम आपको बताएंगे। बने रहे आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं श्रद्धालु। राम राम जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। व्हाट्स योर नेम एंड वेयर यू आर फ्रॉम? I am Purni Rajaswamy. We are from Mumbai, Ghatkopar, and we feel immense happy and pleasure to be here. Apart from this pandal, who has been settled here for various activities, for example, to stay, to bathe, to eat. So it's very happy being here. What do you want to say about the initiative that what do you want to say to Sant Rampal Ji Maharaj is providing the food here, the free of cost to the people, to the followers, to the devotees of Shri Ram Bhakt, those are coming here to see the temple? See, firstly, pet puja is very important, sir. So, भक्त यहाँ पे आ रहे हैं. It's very important कि first fill their stomach and then go for the prayers. Even God says that. So, I think Sant Rampal sir is doing a very big initiative wherein he is providing so much of food to so much of not 1 or 2 or 10,000 lakhs of people coming here to eat their food with fulfilling good amount of food. So, I think great initiative by Sant Rampal sir. Is it free of cost and are you charging for something for that? Definitely, it's a free of cost, no money allocation, good seating arrangements with good air condition. So good initiative. What did you take? I mean that what did you take in the food? I think we had puri with masala puri, dal, rice. We had pickles, that is variation in pickle, that is the carrot one. We had dessert, that is the rava dessert. So many other variations we had. And what about the taste? I already told you it was brilliant. Right. Actually, let me tell you guys. Sant Rampal Ji Maharaj is doing some social reforming work as he's stopping the dowry system and he's stopping every type of the alcohol and all. What do you wanna say about him and what do you wanna say about his initiative? Wherein talking about India, it is a tradition that has been followed from the earlier past. Maybe it could be the alcoholism or the dowry system. So thinking about these two things, which is very very important in India, especially for the ladies, it will be a big help for the ladies if such initiative has been taken by somebody. So I feel this initiative should go overall India, above India, and it should spread massively so that this initiative moves with a greater level of success. What is your message to Sant Rampal Ji Maharaj to start this type of fantabulous work? Firstly, a very good thought by Sant Rampal sir, and youngsters like us who think this kind of initiative should be taken, because as a lady, as a woman, I think this is a thing that he has done very correctly. So firstly, congratulations for that, and I think such a great initiative will definitely move to a great success also. So thank you. Thank you so much. Yes, one more sister is also with us. Let's know her ideas, how she's feeling in Ayodhya. What is the name? Hi sir, Aishwarya this side. Ram Ram ji, how are you? Ram Ram, how are you? I'm good, thank you. Fantabulous, I'm also fantastic. How are you feeling here? I'm feeling very spiritual. I'm having a sense of peace in my mind that I am here, even though I have not visited inside, but I'm already feeling the peace here. What about the food arrangement? How is it being done by Sant Rampal ji? It was very good, the taste was good, and we enjoyed it. Happy stomach, happy mind, everything, happy peace. Yeah. Achha, I want to know one thing that whatever the safety and security level, how is that? Because it's very important for the women. So the guys are coming with their family. Are you happy and are you satisfied with the level of the security from the Yogi Adityanath ji? Yeah, we are, because as soon as we got down here, there was bus facility here. So as soon as we got here, we got in the bus. We came here. Also here there were securities who were guiding us. So we went there. They told us where us to stay, where we can go, everything, where we can eat. So everything was good, perfect. What did you take in the food? I told you everything was good. We had dal, puri, sheera, and pickle, all types of pickle. Everything was there. It was good. See, the devotees are coming, seeing the temple, watching Ayodhya, and guys, the guys believe in the dharma, and to these guys, Sant Rampal Ji Maharaj has come here and saying that how much ever the guys are coming here, we will provide the food to them. What do you want to say about this step? Yeah, it is a great initiative first of all, because in India we have that Atithi Devo Bhava.
so that we can feel here कि जो भी आता है we can everybody is treated equally. नीचे बैठो ऊपर बैठो everything is equal here. You told about the treatment. I want to know that what is the behavior of those guys, those are serving the food and all. Yeah, they were very good, very gentle, very kind. They were asking us from where you're from, how is it in Mumbai, we want to work there, it is a dream place, so we told you can come there, it is a very good place. Thank you so much. Thank you so much. नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय श्री राम. राम राम जी, राम राम जी. How are you feeling in Ayodhya? I am feeling in good. सर व्हाट डू यू वांट टू से, बिकॉज आप राम भक्त हैं और जो भी राम भक्त हैं उन सभी के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने अपने अनुयायियों से बोला कि भाई इन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा फूड अरेंजमेंट होना चाहिए. क्या कहना चाहेंगे, कैसा फूड अरेंजमेंट चल रहा है, जो भी श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने ये कदम उठाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यहाँ पे जो अयोध्या है ये 5 साल के बाद में सनातन धर्म के लिए गौरव की उत्साह जैसी वातावरण है इधर, तो उसमें जो कई धर्म गुरुओं को मौका मिला है कि अपना जो भी कार्य है और जो भी सनातन धर्म के प्रति समर्पित है उसको सेवा दे. उसमें से रामपाल जी का नाम बहुत ही उच्च स्तर पे आता है और रामपाल जी बहुत सारे विषयों को लेके सनातन धर्म में प्रचार और प्रचार करते हैं और उनका काम और उनके बारे में उनकी सादगी जो है उसकी भी चर्चा होती है. और जहाँ तक यहाँ पे लगा हुआ टेंट का विषय है, हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे उच्च स्तरीय जो भोजनालय होता है उससे भी अच्छा स्वादिष्ट यहाँ पे भोजन सबको मिल रहा है और लोग यहाँ पे जो आते हैं श्रद्धा से और बहुत उत्साहित होकर खाना खाते हैं. और जिन लोगों यहाँ पे इस खाने को लोगों तक का देते हैं और सर्व करते हैं वो सभी जो राम भक्तों को जिस श्रद्धा से देना चाहिए उनका व्यवहार ठीक उसी तरह होता है. सर क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, वो हिंदुस्तान को दहेज मुक्त और नशा मुक्त कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है आज के समाज के लिए? आज हम लोग 21वीं सदी में हैं. दुर्भाग्य से आज भी हमारे सामने प्रश्न आता है कि डाउरी और दूसरे विषय, डाउरी जैसा विषय हमारे प्रश्न में आता है, तो ये बहुत ही दुखद बात है. और उस डाउरी के लिए काम करने वाले बहुत लोग हैं, उसमें से प्रमुखता से एक नाम रामपाल जी का है. और डाउरी मुक्त वो जो कर रहे हैं उसके लिए सभी का समर्थन है, हमारा भी समर्थन है. आने वाले समय में रामपाल जी इसमें पूर्णतः सफल हो और भारतवर्ष में उसके इस विषय को लेके बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा रहती है और उनकी सफलता की हम कामना करते हैं. सर आप एक बात और बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि जिस प्रकार से वो एक बात और भी थी यहाँ पर बताई गई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा है या संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएँ और भी अगर भंडारे की व्यवस्था पड़ती है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं. और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि अगर काशी और मथुरा में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम वहाँ भी इनको बुलाना चाहेंगे. और संत रामपाल जी महाराज जी जब भी समाज को ज़रूरत होती है उनकी वो कंधे से कंधा मिलाकर समाज के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो रक्तदान की बात हो या किसी की. लास्ट मैसेज संत रामपाल जी महाराज जी के लिए डायरेक्ट आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल महाराज जी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रोज़ हजारों लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा हो रहा है. उन्होंने जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं मनोपूर्वक सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ. अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है. वहाँ पे तो हमें निश्चित रूप से हम कहते हैं कि रामपाल जी के लिए सेवा का अवश्य ही मौका मिलेगा. फिर एक उत्सव बनेगी जिसमें काशी का भी होगा विषय और हमारा मथुरा का भी होगा. उसमें हम अग्रणी रूप से रामपाल जी का सेवा और उनकी कृपा हम दोनों चाहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, लॉट ऑफ गाइज आर विद अस. क्या कहना चाहेंगे मैम आप इस भंडारे को लेकर, अयोध्या को लेकर? राम राम जी, राम राम. बढ़िया व्यवस्था की है. क्या नाम है आपका? मैं वानती राजू स्वामी हूँ. कहाँ से हैं आप? हम मुंबई से हैं. कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. हमारी वैसे तो अभी दर्शन बाकी है, हम आज ही आए, लेकिन यहाँ पर आकर जो भी व्यवस्था है इसे देख के और जो हमने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर अरेंजमेंट है. चाहे वो टेंट का हो या कोई और व्यवस्था की हो, सारा व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से. और ख़ासकर जो ये रामपाल जी का जो व्यवस्था है खाना खाने का, हमारा ऐसा लग रहा है कि आगे का और भी जो है दर्शन हो या और वो भी अच्छा ही होगा, ऐसा एक हमें फीलिंग आ चुका है. और जो भी हमने खाना खाया है बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट और बैठने की व्यवस्था और जिस तरह से इसे बांटा
उन लोगों का जो एटीट्यूड था, उन लोगों की जो सोशलनेस थी, जो हमारे साथ उनकी बातचीतें थी, बहुत ही सराहनीय थी। बहन जी एक बार आप थोड़ा सा आगे की तरफ आइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एक माँ हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक दहेज मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बेटी की शादी के लिए कितना जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर ये दहेज मुक्त भारत हो जाता है, नशा मुक्त भारत हो जाता है, तो हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित रहेंगी। या सुरक्षा की तो बात क्योंकि है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये उनका सपना है कि उन्हें दहेज मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। ये उनका मेरा रामपाल जी को मेरा प्रणाम है। और उनका ये जो कदम है कि दहेज मुक्त भारत होना चाहिए, हमारा देश होना चाहिए। जैसे कि मेरा ओन एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी शादी दहेज की वजह से कई साल लेट हुई है। इसी वजह से मेरी आज शादी के लायक एक बेटी है। तो ये मुझे सदा चिंतित रहती हूँ कि मैं कैसे कर पाऊँगी। दहेज के वजह से उसकी शादी या जो लड़का मिलेगा वो ऐसा अच्छा मिलेगा या नहीं, क्योंकि आज मेरी 25 साल की लड़की, ये हर एक माँ बाप का होता है, हर एक माँ के दिल में ये होता ही है और ये सच बात है। और जो रामपाल जी का ये जो कदम है कि अनेक गुरु है लेकिन इनका जो कदम है इस तरफ बहुत ही सही है। और ये जो अल्कोहलिज्म है वो एक लड़की या इसके नहीं पूरे परिवार को ही बिगाड़ देता है, पूरी परिवार ये हो जाती है। अगर एक अल्कोहलिज्म फ्री अल्कोहलिक इंडिया होगा तो हमारे जो वासुदेव कुटुंब हम बोलते हैं वो सपना साकार होगा और हम सुखी परिवार सुखी भारत होंगे। बहन जी मैं पिछले बार जब संत रामपाल जी महाराज जी का एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर उन्होंने 3 दिन का विशाल भंडारा चलाया था शामली और बहुत सारे आश्रमों में, हम वहाँ पर गए थे। सैकड़ों की संख्या में शादियाँ हुई, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग भी थे। उन्होंने बिल्कुल भी कोई दहेज नहीं लिया और बहुत ही सादगीपूर्ण और साधारण वेशभूषा में जो शादी हो रही थी। तो लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या संदेश देना चाहेंगी कि उन्होंने करोड़ों अनुयायियों का नशा छुड़वा दिया और करोड़ों अनुयायियों ने ये शपथ लिए हैं कि हम बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह करेंगे, कोई फिजूल खर्चा भी नहीं होगा, लड़की वाले से एक चम्मच भी दहेज का नहीं लेंगे। लास्ट मैसेज संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। ये मेरा मैसेज है कि उनका वो हम सबका उनको ये है कि हम इतना खाना खाने के बाद हमारा पेट ऐसे भर गया और हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। हमारा ये मैसेज है इनको, उनका ये मिशन सफल हो और भारत के सारे नौजवान, जैसे आपने बोले कि सादगी से शादी होनी चाहिए, तो उनकी थिंकिंग भी वैसा चेंज हो जाएगा तो अपने आप चेंजेस आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में। थैंक यू सो मच।